We're honored to welcome our chief guest, Ms. Jyotiben Hanke, and guest of honor, Ms. Jignaben Dave, and Mr. Yogesh Sridhar, Mrs. Lata Sridhar, our respected principal, Ms. Anjali Quatra, our managing trustees, Mr. Tejas Sridhar, Ms. Bhumika Sridhar, and all the parents of kindergarten to class 2 for today's annual day celebration for Than, showcasing Ramayana the epic. I am Shriya Patel, the head girl. Along with me, I have Khwaman Tani, the head boy of the New Tulip International School. We are absolutely delighted and honored to be your guides for today's program. Now we would like to welcome our honorable chief guest of today's occasion, Ms. Jyotiben Thanki and Ms. Jignaben Dave. We are extremely delighted to have a Miss Jyotiben Thanki as our honorable chief guest of the occasion. With an impressive academic track record and dual master degrees in economics and Sanskrit, she has contributed immensely towards women empowerment and coordinated community initiatives to enhance societal welfare while being associated with Gurukul Mahila College, Porbandar as the vice principal. She has won accolades excellence in Gujarati literature, authored several books and publications, and created biographical works on eminent personalities. Jyotiben is both an educationist and social influencer par excellence. We extend a hearty welcome to you, ma'am. At this juncture, we are elated to acknowledge the presence of Mrs. Jignaben Dave, our esteemed chief guest of honor, who has devoted her life for society and the nation. With a BSc and a DMLT degree, she was instigated to establish a pathology laboratory in the tenure 1997 to 2005. Her empathetic nature and compassion for all propelled her to dedicate herself towards philanthropy. In tune with Gandhian principles inherent within her heart and soul, Jignaben's odyssey has been rich and varied. Inevitably, her resolve to serve the society spurred her to establish Yoganjali Kedwani Mandal, Sidhpur Ashram for the greater cause of humanity. We extend a cordial welcome to you, ma'am. Now, it's time to express our gratitude. Here, we have a memento, a token of our appreciation. We request our honorable principal, Ms. Anjali ma'am, to kindly present these tokens to our honored guests. Please come on stage. Now we would like to invite our honorable chief guest Jyoti Thanki and guest of honor Jignaben Dave, our respected principal Anjali ma'am and Lata ma'am and Yogesh sir for the lamp lighting ceremony symbolizing the dispelling of darkness and igniting light of wisdom. We would also like to request Bhumika ma'am to come on the stage as well. Now like to invite Ishan to deliver a heartwarming poetry to welcome you all. राग लिखते ही सुनते ही पढ़ते ही देखते ही मन में जो पहला विचार आए उसे बांध के रखे पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 लिख कर दे दूंगा अगर राम समझ आ जाए तो पता है कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो भाई राम राम तो सब बोलेंगे पर राम सा परिश्रम भी झेलना होगा पहली चुनौती यही होगी कि मर्यादा में रहना होगा और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे अरे शबरी का जूठा खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे काम क्रोध के भीतर रखकर तुमको शीतल बनना होगा बुद्ध जिस पेड़ के नीचे सोए वैसा पीपल बनना होगा
और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत थे राम हमारे। सोच रहे हो ना कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूँ। तुमने एक दो नाम दिया है मुझे, मैं खुद को पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को जानता हूँ। वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात तो वहां तक फैल चुकी कि भरत से भारत के राज में सुना है कुछ तो मंगल होने को है। अरे सुना है कि राम जी आने को है। वाह भाई वाह, बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। मैं नहीं, वहां पे तो सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, इन सबके तो अंदर राम रहते हैं। मतलब आप सबके अंदर राम रहने आते? सच है या फिर झूठ क्या पता। खैर सच है तो क्या ही कहूँ। राम जी तो पता ही होगा, अरे घर के बड़ों ने बताया होगा। तो चलो चलो बताओ कि कौन है राम। बताओ बताओ। अरे पता है तुमको कौन है राम? या बस हाथ धनुष कवच में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या कैसे रावण मारा, लक्ष्मण जिनको पुकारा भाई, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। अभी भी लगता है आपको राम पता है, या वो भी आके हम बताए। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पे, सब कुछ देख रहा हूँ, अहंकार अत्याचार। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, बिना पूरी बात सुने सीधे घर चले आते हो। तो सुनो, तुम्हारे नाम छपों में पहले सा आराम नहीं। अरे तुम्हारे नाम छपों में पहले सा आराम नहीं। ये जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस बस राम नहीं। और अगर कोई राम नाम का गीत अपने निजी स्वार्थ के लिए गाए तो खबरदार खबरदार, जो मेरे राम को बांटा दो। ये बस आतिश का नारा नहीं, पर जब तक राम हृदय में नहीं तब ने राम को पुकारा ही नहीं। पल पल हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब कुछ पाकर खोना भी है राम। और कृष्ण राम के प्रतिभा पर पहले भी सवाल खड़े हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं लाल हुए। अब मैं बताता हूँ कौन थे श्री राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अरे अपने जीत का हर्ष छोड़कर जो रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी सेवा खातिर मुहूर्त रूप में आ जाए, या शेषनाग खुद रक्षक बनकर लक्ष्मण बन जाए। और अगर तुम अहंकार और क्रोध लिपट के सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है क्या पता, इनको शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचार्य का इल्म नहीं, इन्हें स्वरूप भक्त हनुमान चाहिए। भगवा क्या है कौन जाने, लहराना सबको होता है, पर भगवा वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुम सबको, तो मंदिर जाना तो निश्चित है, पर पहले अपना अंदर के राम को बाहर निकालो। आए देखो तो सही समय में कितना बातचीत हो गया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। और हाँ, आज बहुत शुभ दिन है, खूब मजा लेना, कोई कसर मत छोड़ना। मुझे तो जाना पड़ेगा, वो त्रेता में किसी को लेने जो जाना है। और हाँ, जय सिया राम। That was an amazing poem by Ishan, and like he said, we know the bookish description of Lord Ram, but the real quest is finding Lord Ram within us. So, in order to fulfill this quest and know who he actually was, let us enjoy the epic tale of his struggle from birth to restoration and the win of good over bad, the Ramayana replicated through emotions by our little wonders. सबसे पहले वशिष्ठ मुनि और महाराजा दशरथ दोनों सूर्य को नमस्कार करते हुए दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं।
पुनीत मुहूर्त में इस समय अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वह अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है कि इस कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। यह सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त न हो जाए। आप तो जानते हो गुरुदेव, एक स्त्री को मां कहने वाला कोई ना हो तो स्त्री पुण्य नहीं होती। यदि मेरा घर आंगन सुना रहेगा गुरुदेव, तो सुख वैभव खाली महल किस काम के। आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा जानते ही हो। महारानी कौशल्य, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश ना हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। गुरुदेव, उसमें देवी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए, परंतु देवी हम यह यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों गुरुदेव? आप नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? अथर्ववेद के पुण्य ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि इसके विशेषज्ञ है। यह यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए, तो उन्हें बुलाए गुरुदेव, यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, महाराज को स्वयं जाकर यज्ञ के लिए प्रार्थना करनी होगी। महाराज, आप ऋषि श्रृंग मुनि जी के पास जाने की तैयारी कीजिए। गुरुदेव, आज मैं उनके यहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी आर्य सुमन को बुलाकर आदेश देती हूँ कि महाराज को जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े तुरंत तैयार कीजिए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहाँ रथ, हाथी, घोड़े और सेना की आवश्यकता नहीं है। महाराज कुछ मांगने जा रहे हैं, वहाँ पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में डाली जाती है। महाराज दशरथ वहाँ राजा नहीं, एक भिखारी बनकर जाएंगे। आप आज्ञा दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल हो राजन। राजा दशरथ रोते हुए, पैर दबाते हुए ऋषि श्रृंग मुनि को मनाते हैं। वे राजा के साथ अयोध्या आते हैं। ऋषि श्रृंग मुनि यज्ञ की तैयारी करते हैं। यज्ञ होने लगता है। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। अग्निदेव प्रकट होते हैं और उन्हें खीर के 2 पात्र देते हुए कहते हैं, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। राजा दशरथ कौशल्या और कैकेयी के पात्र से सुमित्रा को खीर का एक निवाला खिलाते हैं। बधाई हो महाराज, कौशल्य रानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
बधाई हो बधाई, कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज, रानी सुमित्रा ने एक नहीं 2 पुत्रों को जन्म दिया है। बधाई हो। नवमी तिथि को राम जी का जन्म होता है। जन्म के लिए अयोध्या में खुशियां मनाई जाती है। कौशल्य नंदन का नाम 2 अक्षर का होगा, राम। इतना महान कि उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाए। विश्व का भरण पोषण करने वाले का नाम भरत होगा। यह संपूर्ण लक्षणों से पूर्ण लक्ष्मण है और यह छोटे कुमार से सभी शत्रु डरेंगे, इसीलिए यह शत्रुघ्न है। चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत
भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र खिलकी उठत धाय खिलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय गिरत भूमि लटपटाय धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। गुरुकुल में गुरु द्वारा योग व सरस्वती वंदना सिखाई जाती है। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। गुरुकुल से अयोध्या पुनः आगमन। श्री रामचंद्र की जय, 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 श्री रामचंद्र की जय। मैं राम अपने चारों भाइयों के साथ अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना आजीवन हमारा धर्म रहेगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुखी रखे। अयोध्या में विश्वामित्र का आगमन। आपका सुस्वागतम है गुरुदेव। आपके आने से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनिवर, इस महल को पावन कीजिए। सूर्यवंश के राजा, तुम्हारी अयोध्या में सब कुशल मंगल है ना? जहाँ आप जैसे पुण्य विभूति के चरण कमल आ जाए, वहाँ सब मंगल ही मंगल है। अयोध्यानाथ, तुम्हारी विनम्रता देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज्ञा कीजिए मुनेन्द्र, किस अभिप्राय से आपका यहाँ आगमन हुआ? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ अपने प्राण देकर भी पूरा करेगा। राजन, तपोवन में असुरों का उत्पाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे यज्ञ और अनुष्ठान पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, वही ताड़का से हमारी रक्षा करने में समर्थ है। संभव है इसी में सबका कल्याण हो। मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। सुमंत, राम को भेजने की तैयारी करो। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा। विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण वन की ओर जाते हैं। गुरुदेव, यह भयानक स्थान तो बड़ा ही दुर्गम है। यह पैरों के निशान किसके हैं? यह पदचिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं और इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित नहीं जा सकता। राम, यही है ताड़का। रात्रि के समय इन निशाचरों की शक्तियां बढ़ जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इसका वध कर दो। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की बिछी भी साथ। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। डम 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 नौजे मौत। डम 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 नौजे मौत। डम 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 डम। रक्त चरित 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 रक्त चरित। बात बात पर है घात, मौत की बिछी भी साथ। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। डम 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 नौजे मौत। डम 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 डम। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी। डम 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 नाच मौत का। रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। डम 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 नाच मौत का। मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा।
विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को सीता स्वयंवर में लेकर पहुंचते हैं। ऐसा कोई नहीं है इस आर्यवर्त में जो इस शिव धनुष को तोड़ सके। महाराज, ऐसा कहकर आप मेरे भैया की उपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित राजवंशों के समर्थ से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पूरे आर्यवर्त में मेरे भैया जैसा वीर कोई नहीं है। मेरे भैया की बारी आने तक प्रतीक्षा कीजिए। सभी राजा व रावण धनुष को उठाने की कोशिश करते हुए
नगरी में राम के राजा बनने की तैयारी शुरू होती है। राजा बनेगा राम, भरत बनेगा दास और तू बनेगी दासी। किसमें इतना साहस है मुझे दासी बनाने का? कैकेयी दशरथ के पास जाकर, महाराज, असुर शंबर के साथ जब आपका युद्ध हुआ तो उस रथ की सारथी मैं बनी थी। उस युद्ध में जब आप घायल हुए तब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय आपने मुझे 2 वचन मांगने के लिए कहा था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा पहला वचन है कि भरत का राज्य अभिषेक हो और दूसरा यह कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये तुमने कैसा वचन मांग लिया रानी? राजा दशरथ अत्यंत दुखी मन से राम को वनवास जाने का आदेश देते हैं। अपने पिता की आज्ञा लेकर राम वनवास को जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। केवट की नाव में बैठकर राम नदी पार करते हैं। वह जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं।
भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। आप वापस अयोध्या चलिए, हम सब आपको लेने आए हैं। अयोध्या नगरी आपके बिना सूनी है। नहीं भरत, यह हमारे पिताजी का आदेश है कि उनका एक पुत्र वन में रहेगा और दूसरा राजा बनेगा, और पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। इसलिए हे भरत, तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। स्वामी, कितना मनभावन लेख है, कृपा करके इसे पकड़ लीजिए ना। क्या करोगी कल्याणी इसका? भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्ण मृग किसी माया जाल के समान लगता है। लक्ष्मण, मैं हिरण पकड़ने जा रहा हूँ, तुम सीता के साथ ही रहना। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। लगता है तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में है, तुम जाओ और उनकी रक्षा करो। मैं भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही होगा लक्ष्मण। ठीक है भाभी, मैंने यहाँ एक अदृश्य रेखा खींच दी है। जो कोई इस लक्ष्मण रेखा को पार करने का साहस करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। इसीलिए मेरी विनती है आपसे कि किसी भी परिस्थिति में अपने चरण इस रेखा के बाहर नहीं रखें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें भूख भी लगी है। तुम्हारी कुटिया देख हम इस आशा से आए हैं कि हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। ले आओ देवी। यह लीजिए मुनिराज, कृपया आपको ही यहाँ आना होगा। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं, मैं ही बाहर आ जाती हूँ, मुझे श्राप मत दीजिए। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राज्य की 5 स्त्रियां
महल में पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। सीते, आज तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ओम यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकुकुकुकुमम खंक खंक खंखम डंसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलह पातु वह चंद्रचूड़ः। जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं, जिसने जीत तीन लोक वही मानव हूँ मैं। सारे ग्रहों को है बांधा करा काल भी अधीन, महादेव का जो भक्त वही रावण हूँ मैं। जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं, जिसने जीत तीन लोक वही मानव हूँ मैं। सारे ग्रहों को है बांधा करा काल भी अधीन, महादेव का जो भक्त वही रावण हूँ मैं। रावण हूँ मैं, वही रावण हूँ मैं। रावण हूँ मैं, वही रावण हूँ मैं। रावण हूँ, रावण हूँ, रावण 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 हूँ मैं। दुबाई ज्ञान मुझ में भक्त महादेव का, सामने न टिकता मेरे स्वर्ग का कोई देवता। मैं ही सर्वश्रेष्ठ और मैं ही परम ज्ञानी हूँ, इतनी योग्यता है तभी थोड़ा अभिमानी हूँ। मैं काल का स्वरूप है विराट मेरा रूप, महादेव ने दिया है चंद्रहास मेरे हाथ में। नाम का प्रकोप तीनों लोक में है, ऐसा मेरे नाम से है तीनों लोक थर थर कांपते। पुत्र कह किसी का जो भी सीखा कुछ से सीखा है, पसंद मुझे जो विश्व में वो सारा मैंने जीता। नानी नाना के समक्ष मेरा बाल्यकाल बीता, जहाँ तंत्र मंत्र माया का प्रयोग मैंने सीखा। है ना दुखी कोई मेरे साम्राज्य में, गुस्सा ना पंडित बस दानव का भेष है। स्वर्ग जीता और तोड़ा इंद्र के घमंड को, लंका का राजा दशानन लंकेश में। लंका का राजा दशानन लंकेश में, लंका का राजा दशानन। जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं, जिसने जीत तीन लोक वही मानव हूँ मैं। सारे ग्रहों को है बांधा करा काल भी अधीन, महादेव का जो भक्त वही रावण हूँ मैं। जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं, जिसने जीत तीन लोक वही मानव हूँ मैं। सारे ग्रहों को है बांधा करा काल भी अधीन, महादेव का जो भक्त वही रावण हूँ मैं। शरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा, श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं, वेतं वेतं वा सर्वमे तत्समक्ष्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। रावण सीता को लेकर जाता है, तब रास्ते में रावण और जटायु की लड़ाई होती है। रावण के पुष्पक विमान में अपहरित होती राजकुमारी सीता की पुकार भले ही राम और लक्ष्मण के कानों तक ना पहुंची, पर उसकी दुहाई की गवाही देने वाला एक था। राजकुमारी सीता को बचाने महान जटायु ने रावण के षड्यंत्र के विरुद्ध उड़ान भरी। आज तक जटायु के साहस और क्रोध का सामना कोई भी नहीं कर पाया था, पर आज तक जटायु का सामना रावण से नहीं हुआ था। अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में हारने वाला पराजित नहीं, प्रेरणा बनता है। घायल, अकेला जटायु ने प्रतीक्षा में अपनी अंतिम सांस को रोके रखा। सांस। राम लक्ष्मण सीता को कुटिया में न पाकर सीता की खोज में निकलते हैं। तब आगे जाकर उन्हें पक्षियों के राजा जटायु मिलते हैं। कौन है आप और किसने आपकी यह दशा की है? क्या आपने मेरी पत्नी सीता को देखा है? मैं पक्षियों का राजा जटायु हूँ। रावण आपकी पत्नी सीता को दक्षिण की ओर ले गया है, यही बताने और आपके दर्शन के लिए मैंने अपने प्राण रोक कर रखे थे। अब मैं विदा होना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। मेरी राम आएंगे, मेरी राम आएंगे।
बाबूजी मुझको भूल गए लो, दास की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी दिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी दिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। आप ये बताइए माता कि हम सुग्रीव तक कैसे पहुंचे। यहाँ से जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सरोवर मिलेगा। वहां से आगे जाकर आपको 2 पर्वत दिखेंगे। वहीं महाबली सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते हैं। भैया, मुझे तो यह कोई वेद पाठी पंडित लगते हैं। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। हे ब्राह्मण देवता, हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। कौन हो आप तपस्वी? आप केवल इतना बता देंगे कि आपको ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है। हम दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ऋषिमुख पर्वत पर महाबली सुग्रीव वास करते हैं। हमें उनसे मिलना है। यदि हमारा मिलन सुग्रीव जी से नहीं हो सकता तो हमें हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम कृपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। हनुमान
हनुमान भी वे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। जय श्री राम। भगवान, आपने अपने भक्त को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहज मदन तुम रोज सखावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा चमकुबेर दिगपाल जहाने कवि कोविद कहि सके कहाने तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन बर भानो लील्योता है मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम गाज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों सुख परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई झूठ ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वे दोनों मानव कौन हैं? वे स्वयं प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। लंका का राजा रावण उनकी धर्म पत्नी माता सीता को उठाकर ले गया है। इस समय वो आपसे सहायता मांगने आए हैं। आप अपनी वानर सेना की मदद से उनकी सहायता करें। प्रभु, हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी पत्नी माता सीता देवी को खोज निकालेंगे। प्रभु, मैंने उस राक्षस को माता सीता को ले जाते देखा है।
उन्हें ढूंढने के लिए मैं अपनी पूरी वानर सेना सहित आपकी सहायता करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव हनुमान जी को माता सीता की खोज के लिए लंका भेजने की तैयारी करते हैं। महाराज, इतने बड़े महासागर को मैं कैसे पार करूंगा? हे महाबली हनुमान, तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। जागो हनुमान, जागो, जागो बजरंगबली, जागो। हनुमान जी लंका की ओर उड़ते हैं। हनुमान जी लंका की ओर उड़ते हैं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को दुखी अवस्था में देखा और वह उनके पास गए। कौन हो तुम? माता, मैं रामदूत हनुमान हूँ। रामचंद्र जी ने मुझे आपका पता लगाने और आपको यह संदेश देने भेजा है कि वे शीघ्र ही आपको रावण के बंधन से मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी, जो उनकी पहचान थी। हे हनुमान, रघुनाथ जी को मेरी व्यथा कह देना और उनसे यह भी कहना कि वह बहुत कृपालु है। मैं उनकी कुशलता की कामना करती हूँ। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन, एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 तेरे नाम ओम का नाना, तेरे नाम, तेरे नाम आदि का, तेरे नाम, तेरे नाम आदि का, तेरे नाम, तेरे नाम आदि का, धूम का नाना, तेरे नाम आदि का, धूम का नाना, तेरे नाम आदि का, धूम का नाना, तेरे नाम आदि का, भोला निकाला निकाला तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।
उन्होंने अपने शक्ति का परिचय देते हुए अशोक वाटिका को विध्वंस कर लिया और लंका को जलाकर अपना पराक्रम दिखाया। सैनिक जब युद्ध की ओर कदम बढ़ाते हैं तो संसार की सभी मोह माया को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। युद्ध में केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय, और आज हमारा भी यही लक्ष्य है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक है, मन में उत्साह और प्रभु पर विश्वास। सेनापति नील, आप निर्धारित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े, किंतु जान रहे कि इससे किसी भी नागरिकों को कोई हानि ना हो। प्रभु, अब आप निश्चिंत रहिए, बस आप हमें चलने का आदेश दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सेतु निर्माण इसके बाद शुरू हो गया। शिलाओं पर जय श्री राम लिखकर सेतु का निर्माण किया गया। सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। गिरिराजांचे देहानी खरुनी, गजांग शात्या शिराव चलुनी। गिरिराजांचे देहानी खरुनी, गजांग शात्या शिराव चलुनी। जलात घ्यावे जवे ढकलुनी, जलात घ्यावे जवे ढकलुनी। सेतु बंधने जोडून ओढा, सेतु बंधने जोडून ओढा, समीप लंकापुरी। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। फेका झाडे फेका डोंगर, पृष्ठी झेलेल त्याना सागर। फेका झाडे फेका डोंगर, पृष्ठी झेलेल त्याना सागर। ओढा पृथ्वी पैल तटावर, ओढा पृथ्वी पैल तटावर। वडवाग्नी तो धरील माझी, वडवाग्नी तो धरील माझी। सेतु शेषापरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सेतु बांधा रे सागरी, सितावर रामचंद्र की जय।
सेतु का निर्माण पूर्ण होने पर श्री राम जी अपने वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए। सबसे पहले रावण अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजता है। मैं तुम दोनों भाइयों की जीवन लीला आज समाप्त करके रहूंगा। हमें पक्षीराज की सहायता लेनी चाहिए। उन्हें ये वरदान है कि वे इस नागपाश को काट सकते हैं। जल्दी कीजिए, नहीं तो ये नागपाश धीरे धीरे इनके प्राण हर रही है। पक्षीराज राम जी का नागपाश खोल देते हैं और लक्ष्मण के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी पर्वत पर पहुंचकर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते और वे संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठा लाते हैं। वह लक्ष्मण को पिलाई जाती है और वे उठ जाते हैं। दूसरे दिन राम रावण युद्ध का आरंभ होता है। प्रभु, रावण भगवान शिव का कट्टर भक्त है। उसे अमरता का अमृत दिया गया था, इसलिए यदि आप उसकी नाभि में तीर चलाएंगे तो वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे
सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। सावधान रावण, श्री राम। इसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित अयोध्या वापस लौटते हैं। पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां मनाई जाती है व दीप प्रकट किए जाते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक होता है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन
भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। Can we have a huge round of applause for all the kids? If you think it's over, it's not over yet, as all of our little wonders are going to sing the Ram Stuti by themselves. श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग। Parents, we request all of you to turn on your mobile torches to appreciate our शर kids. चाप धर संग्राम। Everyone, please turn on their mobile torches. रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। ओम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरण वचसा गृह्णामि। परम आदरणीय श्री योगेश्वर, आदरणीय श्री लताबेन,
इस स्कूल की आचार्य उनको और यहाँ उपस्थित सभी बच्चे के माता पिता एवं यहाँ पार्टिसिपेंट छोटे छोटे सभी बच्चों को हृदय पूर्वक का प्रणाम करती हूँ। इट्स वेरी वंडरफुल। 2 घंटा राममय बच्चों ने हमें बनाया दिया। राम, मुझे तो ऐसा लगा कि हम द्वापर युग में अयोध्या में पहुंच गए। इतना अद्भुत वो वातावरण ये बच्चों ने खड़ा कर दिया। दूसरी बात मुझे ये लगी, जो हमें ये पंचदीप का प्राकट्य किया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पंचामृत का समन्वय हुआ है। वो पंचामृत माने क्या? पंचामृत माने सबसे पहले इसके ट्रस्टी लोग, जिनके ये उदारता, जिनके ये भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव, ये यहाँ हम सब ने अनुभव किया। तो ट्रस्टी लोग, दूसरे हैं आचार्य। पंचामृत का दूसरा अमृत आचार्य है, क्योंकि आचार्य ने ये सब बच्चों को चुन चुन के अपने शिक्षकों के हस्त में ये कार्य सौंप दिया। तो तीसरा अमृत है शिक्षकगण, शिक्षक, क्योंकि उन्होंने, मैं देखती थी, उन्होंने वो बच्चों के साथ कैसे कैसे काम लिया है, इसका प्रतिबिंब यहाँ हम देख रहे हैं। और चौथा अमृत है वो बच्चे के वाली लोग, माता पिता का सहयोग और सहकार हो और अपने बच्चों के प्रति ये निष्ठा है। नहीं तो मैं भी एक बहुत बड़ी स्कूल के साथ जुड़ी हुई हूँ और ये भी हमारी भारतीय संस्कृति ये स्कूल है, लेकिन वहाँ बच्चों के वाली ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नाताल के ये सब उत्सव, ये सब हमारे बच्चों को हमें सिखाना है। ये हवन नहीं सिखाना है, मंत्रोच्चार नहीं सिखाना है। इसलिए मैं ये इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल ये है, तो भी भारतीय संस्कृति का प्रत्यक्ष दर्शन हमने ये पंचामृत से मिला है। इसलिए मैं बार बार अभिनंदन प्रदान करती हूँ। और 5वां अमृत है, यहाँ आके जिन बच्चों ने ये परफॉर्मेंस किया, ये परफॉर्मेंस अद्भुत था। और मुझे ऐसा लगा ये तो इतने छोटे बच्चे, ये बच्चों के साथ काम कैसे लिया गया, ये बच्चों को कैसे सिखाया गया। अलबत्त बच्चे भी कितने छोटे, कितने निर्दोष थे कि सामने मेरी माँ, मेरी मम्मी कहाँ बैठी है, मेरे पापा कहाँ बैठे हैं, वो देख रहे हैं या नहीं। और ये भी बच्चों की निर्दोषता का प्रतीक हमें होता रहा। तो इस अद्भुत ये रामायण 2 घंटे में हमें पूरा दर्शन, मेन थिंग का दर्शन हमें यहाँ बैठ के कराया। इसलिए मैं बार हृदय से ये सबको अभिनंदन प्रदान करती हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि यदि मुझे बचपन वापस मिले तो मैं यहाँ आके उस राम और सीता की नृत्य नाटिका में मैं शामिल हो जाऊँ। ऐसा भी मुझे प्रतीत हुआ कि कितना अच्छा माहौल है। और एक बात ये भी है कि ये बच्चे इतने निर्दोष हैं, उनके मन में ये जो
इम्प्रेशन हुई है कि मैं राम हूँ, मैं हनुमान बना हूँ, मैं ये हूँ, ये जीवन भर ये नहीं भूलेंगे। मेरे 12 में बहुत छोटी थी, तब हमारे स्कूल में गौतम बुद्ध और किसा गौतमी उनका ड्रामा कराया था, उसमें मुझे बुद्ध का पात्र मिला था और आज तक ये बुद्ध मैं बनी थी, इनकी इम्प्रेशन मेरे अंदर है और तब से ये बुद्ध ये मेरे लिए आराध्य हो गए थे। तो मैं मानती हूँ कि हर एक स्कूल में ये स्तुत्य और अभिनंदनीय कार्य है। योगेश भाई, आपने बहुत भारतीय संस्कृति का बहुत कार्य अच्छा किया है और आपका प्रदान बहुत महत्व का है। हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए, ऐसी मैं आशा को व्यक्त करती हूँ। और इस माहौल में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे मन में भी राम 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 हो गए हैं, राम का विजय हो गया है, इसलिए कुछ अधिक बोलना ये योग्य नहीं है। मैं इस सुंदर कार्यक्रम में, ये अभिनंदनीय कार्यक्रम में मुझे ये यहाँ आमंत्रित किया गया और आप सबके प्रति मेरे हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सब की आभारी हूँ और आप सब के प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप ऐसे भारतीय संस्कृति के भावी धरोहर के माता पिता है, इसलिए मैं आप सबको भी धन्यवाद प्रदान करती हूँ। अब मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ। अस्तु इति ओम शुभम भवतु। बहुत अच्छा लगा। Jai Shri Ram. It's been an exhilarating experience with all of you present here. And this evening, I take this opportunity to thank each and everyone present here. It is my heartfelt gratitude for all of you to spend this extraordinary evening with us. On the behalf of the entire team of the New Tulip International School, I would like to express my indebtedness to the Honorable Chief Guest, Jyotiben Thanki and Jignaben Dave, for officiating this event. I would also like to thank other esteemed guests of honor who have graced this event. A big thank you to Mr. Yogesh Sridhar, Lata ma'am, Tejas, and entire team of the New Tulip International School. I also want to extend my gratitude to Anjali ma'am, without whose support I couldn't have delivered this event to you all. My choreographers, my entire choreography team, sound team, light team, LED, Hardik Bhai have done extraordinary job. In just 3 days, he has given me the entire LED program. So I would really specially appreciate him and his team. And you, all of you. Without you all, this was never going to be possible. It is your immense support that has motivated us to do this, and you can see the result on your own, that how your trust has helped us to train our children, and everything rest is in front of your eyes. Last but not the least, I express my deepest appreciation for the technical, non-technical, acoustic team and every other member, be it a ground staff, everyone who has been instrumental in making this event successful. Thank you. Good evening, everyone. I am not dressed to the occasion to come on the dais, because I never thought I will come on the dais to express my feelings, but first of all, I would say that
whatever has happened today, if that could be described, then it will be injustice, because Ram and any play on Ram cannot be described. So it was really, really, really very, very good. I am completely at loss of word. I would like to thank 2-3 people, although everyone has done an excellent job. But first of all, I want to pay special thanks to the person who has got this creative idea. In a world today where everything, there is a lot of controversy, to choose a topic which is so good and which is so close to the heart of the people, and to make such event and make such a nice program play on this is itself a very, very big thinking and a very creative thinking. I think that no one can easily do it. So the courage, the creativity of the person who thought of this idea is like, you can't appreciate those in words. Secondly, I want to also appreciate the kid who started What is Ram? And I think that guy did an excellent job. But you know, after that, the collective effort of so many people, actually, I think people forgot how it started. So What is Ram is very, very important, and I don't want to waste so many people's time in describing what is Ram, but Ram can't be actually described. And finally, I would like to put appreciation to all the people who have brought it together, but especially I would like to read a sloka which will explain everything. So it is, Guru Govind dono khare kaake lagu pao, Baliyari Guru aapne Govindiyo bataye. So I think everything is related to the teachers and the mentors, without which this would not have been possible. And I am really, really at loss of word. I cannot think what a great event it was. And I have seen Ayodhya. Actually, I have not been able to go to Ayodhya till now because of some or other reason. But today I saw Ayodhya here, and describing anything about it will be, you know, really, really under appreciation of the whole event. Thank you so much. Thank you. मैंने यहाँ पे राम को देखा है, मैंने हर एक बच्चे में राम को देखा है, हर एक बच्ची में सीता को देखा है, और शायद इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और जो ये चीज़ हम मतलब, अगर जैसे एक सिंपल सा मैं एक उदाहरण, अगर आप कभी भक्ति में लीन होते हैं, अगर आप कभी पूजा करते हैं, कोई भी एक पाठ करते हैं, तब आपके हाथ पे गूज़बम्स आते हैं, आपके रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे वो रोंगटे मेरे खड़े हुए जब श्री राम यहाँ पर आए। मेरे को लगता है इससे अद्भुत एक रामायण की लीला या राम लीला, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जो अभी अपनी धोती संभाल रहे हैं, वो हमें राम बता रहे हैं और वो हमें सीता बता रहे हैं, और ये चीज़ें उनमें आ रही हैं। इस बारे स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों ने राम स्तुति याद करी है। जब ये एनुअल डे स्टार्ट हुआ था, वी गॉट दैट मैसेज फ्रॉम एवरी टीचर हियर that please help your child in memorizing Ram Stuti. Shri Ramchandra Kripalu Bhajan. Trust me, it is difficult if you are not reading it every day. Because every line is similar. अगर आप कभी mix कर देते हैं, कभी confuse हो जाते हैं. लेकिन your child is speaking Ram Stuti today. What else do you want? मुझे यही लगता है। और आज जब मैंने ये देखा कि रामायण के हर एक कांड में हर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को कवर किया गया। मैंने देखा शबरी के बेर पे बच्चियों को नाचते हुए, मैंने देखा आरंभ है प्रचंड है युद्ध की ललकार पुकारते हुए। इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मेरा आप सबसे आई रियली हार्टफुल थैंक्स to all of you, to each and everyone, especially to the teachers. It is very difficult to handle these many kids, and you know, asking them to perform and make themselves comfortable. Imagine the challenge these teachers would have faced. Every day they are practicing in the school, and suddenly these nursery kids, LKG and senior KG kids are a bit mature, but imagine the struggle of nursery kids, you know, standing here in a totally different environment, looking for in front of so many different faces. It was a tough job, but I really appreciate, and a very big thanks to all the teachers here. Thank you so much everyone. Thank you. And I'm blessed my child is studying in a very good and a very safe school. Thank you. Good evening parents. Before you move, this was the first part of annual function by Junub School. Second will be hosted on 29th of this month, and that is the second part with 4 Purans. These students are from grade 3 to grade 12.
they'll be performing 4 Purans. The first one would be Shiv Puran, describing everything about Shiv, starting from his marriage, Tandav and Jalandhar Yudh, pura usme aayega. Second will be Durga Saptashati, describing all the 9 rupas of Devi. Then the third one would be Vishnu Puran, describing all the 9 avatars of Vishnu. And the last would be Mahabharata, describing the whole epic of Mahabharata. So it is there for you to come again, join us and make this event a grand success. Thank you for making this grand success, but then it is one more celebration to be there, which will be held on 29th. Waiting for you to be there. Thank you so much.